سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکومت کا مہنگائی میں جلتے عوام پر پیٹرول بم سے حملہ۔ پیٹرول 13 روپے 55 پیسے مہنگا، نئی قیمت 272 روپے 79 پیسے ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 75 پیسے کا اضافہ ہوا۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری بھی دے دی ہے۔ حکومت کا مہنگائی میں جلتے عوام پر پیٹرول بم سے حملہ کیا گیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے نمائندے راہیل بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راہیل، بتائیے گا کیا کہنا ہے لوگوں کا کس طرح سے شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی بالکل، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر عوام پر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، اور اس وقت فی لیٹر جو قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے وہ پیٹرول پہ 13 روپے 55 پیسے کا جو ہے کہ اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ڈیزل کی اگر ہم بات کریں تو ڈیزل میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یقینی طور پر یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کا شکوہ کرتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد صرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ٹرانسپورٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کے ساتھ ہی وہ تمام ضروریات زندگی بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ایک طرف لوگوں کا یہ شکوہ ہے کہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پیٹرول کی قیمتوں میں اس وقت 13 روپے 55 پیسے کا جو اضافہ ہے، جو کہ بہت زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کو عوام کی طرف سے شکوہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول ڈلوانا ہماری مجبوری ہے، اگر آفس جانا ہے یا اپنے کام کاج پر جانا ہے تو اس کے لیے پیٹرول بنیادی ضرورت ہے، مگر اس بنیادی ضرورت کو حاصل کرنے کے لیے عوام کے اوپر جو ہمیشہ پیٹرول بم گرایا جاتا ہے اور اس سے مشکلات میں یقینی طور پر اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں اوورآل تو عالمی منڈی میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی آج سے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 79 پیسے اور جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت اس وقت 278 روپے 95 پیسے ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ پیٹرول پمپس پہ رش نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ 12 بجے کے بعد جب قیمتوں میں اضافے کا اطلاق ہونے لگتا ہے تو 12 بجے سے پہلے ہی کیوں نہ پیٹرول بائکس میں یا گاڑیوں میں بھروا لیا جائے، تاکہ کچھ دیر کے لیے ہی انہیں کچھ ریلیف مل جائے چند پیسوں کا، مگر پھر بھی لوگوں کی جو قوت خرید ہے، ایک طرف الیکشن کا دورہ ہے، دوسری طرف کاروبار نہ ہونا، اور تیسری طرف پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، جسے عوام مسترد قرار تو دیتے ہیں مگر ان کی مجبوری بھی ہے، چاہے وہ شکوہ کریں یا شکایتیں کریں، انہیں اتنی داموں پیٹرول بھروانے پر مجبور ہے۔ جی، عوام جو ہے شکوہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کا مہنگائی میں جلتے عوام پر پیٹرول بم سے حملہ کر دیا کہ پیٹرول 13 روپے 75 پیسے مہنگا ہو گیا، نئی قیمت 272 روپے 79 پیسے ہو گئی ہے، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت کی اگر بات کریں تو 2 روپے 75 پیسے کا اضافہ، مٹی کے تیل کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر کمی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دے دی۔ ہمارے نمائندے راہیل بیگ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آل پاکستان انجمن تاجران سندھ نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ مسترد کیا۔ صدر جاوید قریشی کا کہنا ہے کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، خوردنی اشیاء سمیت ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی۔ حکومت اپنا فیصلہ واپس لے کر عوام کو ریلیف دے۔ جیسے کہ نگراں حکومت نے جاتے جاتے عوام پر آج جو پیٹرول بم گرایا ہے، 13 روپے 55 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے۔ عوام پہلے ہی مہنگائی میں پسی ہوئی تھی، لیکن حکومت نے آج عوام کے اوپر یہ پیٹرول بم گرا دیا ہے۔ عوام کسی بھی طریقے سے یہ جو ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، اس سے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا اور خوردنی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، عام آدمی کی پہنچ سے ہر چیز دور ہو جائے گی۔ حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اپنا یہ فیصلہ واپس لے اور عوام کو ریلیف دے۔
सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत-ए-हाल बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई इम्तिहान बन गई। इलेक्शन कमीशन का कुछ हलकों में इंतखाबात मौखर करने का इंतजार। तर्जुमान के मुताबिक जहां बैलेट पेपर्स दोबारा छप रहे हैं वहां इलेक्शन मौखर हो सकते हैं। खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो कोई और चारा नहीं होगा। हंगामी इजलास में बैलेट पेपर का साइज कम करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई इलेक्शन कमीशन के लिए चैलेंज बन गया। इंतखाबात मौखर होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई के मसले पर हंगामी इजलास। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि खुसूसी सिक्योरिटी कागज ना मिला तो इंतखाबात मौखर के अलावा कोई चारा ना होगा। ऐसे हलकों में इंतखाबात मौखर हो सकते हैं जहां बैलेट पेपर्स दोबारा छापने पड़ रहे हैं। मौजूदा छपाई का अमल मुकम्मल होने के बाद ऐसे बैलेट पेपर्स दोबारा छापे जाएंगे। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स का साइज कम करने का फैसला किया है। खुसूसी सिक्योरिटी कागज की दस्तयाबी और बरवक्त छपाई एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इजलास में बताया गया कि 2018 में बैलेट पेपर्स के लिए 800 टन खुसूसी सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल हुआ था। उम्मीदवारों की अक्सरियत की वजह से इस बार 2400 टन कागज की जरूरत पड़ी। बैलेट पेपर्स का साइज कम करने से कागज की जरूरत 2170 टन रह गई है। 2170 टन में एक बार बैलेट पेपर छप सकते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी अरूज पर है। NA 238 से IPP के उम्मीदवार महमूद मौलवी की क़यादत में मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली गई। महमूद मौलवी का कहना था कि नाज़िमाबाद वाक़या अफसोसनाक है, इलेक्शन का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। इलेक्शन के दिन करीब आते ही सियासी सरगर्मियां उरूज पर आ गईं। इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान सिंध के सदर महमूद मौलवी की जानिब से NA 238 में रैली का इनेकाद। रैली हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई PIB पहुंची, जहां महमूद मौलवी ने आवाम से मुलाकात की, मसाइल सुने और 8 फरवरी को भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त भी की। महमूद मौलवी का कहना था शहर में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नाज़िमाबाद में होने वाला वाकया अफसोसनाक था, इलेक्शन का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे खैर व आफियत से ये 8 तारीख का दिन गुजर जाए और जो भी जीते हम उसको खुशामदीद कहेंगे। उसकी वजह यह है कि जो 2 दिन कबल हुआ है वो मेरे ख्याल से हम उसकी मजम्मत करते हैं। उसकी वजह है कि अवाम देखिए ना, इस मुल्क में खुशहाल, हम चाहते हैं कि खुशहाल रहे। ये नहीं कि हम एक दूसरे को मारें, एक दूसरे के साथ लड़ें और लोगों की जानें चले जाएं। ठीक है, हम पाकिस्तानी हैं और पुरअमन शहरी हैं। हम ये कहते हैं कि अमन से रहो। जो इलेक्शन जीतेगा उसको हम खुशामदीद कहेंगे। हमारा हक है लड़ना, उनका हक अपना है, हर एक का अपना डिफरेंस ऑफ व्यू है। इंतखाबी मुहिम के दौरान महमूद मौलवी के हमरा PS 102 के उम्मीदवार और सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली जनेजो का कहना था कि सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। हम बिल्कुल होपफुल हैं कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी हमारी। लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसीलिए हम ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। इलेक्शन में 8 दिन बाकी हैं और सियासी जमातों के उम्मीदवारान अपनी अपनी जीत के लिए पुरअज़म हैं। कैमरामैन कमर आबदी के साथ अयाज राना, City 21। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। औरंगी टाउन से उम्मीदवार NA 246 अमजद इस्लाम अमजद कहते हैं कि औरंगी टाउन की तकदीर मरकजी मुस्लिम लीग बदलेगी। औरंगी टाउन ने माजी में तमाम जमातों का आसमा लिया, किसी जमात ने इस हल्के के मसाइल हल नहीं किए। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबात का दंगल सजने में बस कुछ दिन बाकी, सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम तेज हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खस्ता हाल सड़कें, शाहराहों पर बहता सीवरेज का पानी, अवाम ने मसाइल के हल की उम्मीदें उम्मीदवारों से लगा ली। औरंगी टाउन NA 246 से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अमजद इस्लाम अमजद ने इलाके की तकदीर बदलने का फैसला कर लिया। कहा कि माजी में दीगर जमातों ने अवाम को मायूस किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग औरंगी टाउन की तामीर करेगी। औरंगी टाउन का ये जो इलाका है पसमानदा इलाका है, कराची का हिस्सा है, लेकिन इसको बेशुमार हमेशा से इसके साथ ज़्यादती की गई है। मुख्तलिफ जमातों को औरंगी टाउन ने ऑन किया, उनको जो है ना जितवाया, MPA बने, MNA बने, काउंसलर बने, चेयरमैन बने, लेकिन हमेशा से लोगों ने औरंगी टाउन के साथ ज़्यादती की है। अल्लाह की मदद और नुसरत मेरे साथ हुई तो इंशाल्लाह औरंगी टाउन को हम बनाएंगे, औरंगी टाउन की महरूमियाँ ख़त्म करेंगे, बिजली का मसला, पानी का मसला इंशाल्लाह हम बहाल करेंगे। अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि 4 फरवरी को यूनिवर्सिटी रोड पर होने वाले जलसे में औरंगी टाउन से बड़ी तादाद में लोग आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह औरंगी टाउन से एक बड़ी तादाद में हम काफिला लेकर निकलेंगे। हमारी लोगों के साथ
मुलाकातें राब्ते शुरू हो रही हैं। हमारा कल भी वर्कर्स इजलास था यहाँ पर, तो 4 फरवरी को हम इंशाअल्लाह ये साबित करेंगे कि कराची के अंदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है और कराची पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का है। औरंगी टाउन से मेरे हलके से एक बड़ी तादाद में हज़ारों का काफ़िला मर्द व ख़वातीन का इंशाअल्लाह हम यहाँ कर 4 फरवरी को निकलेंगे। इस मौके पर अमजद इस्लाम अमजद ने शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए। कैमरामैन जानजेब अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। नून लीग की कराची में इंतखाबी मुहिम तेज है। PS 91 के उम्मीदवार नासरुद्दीन महमूद ने आवाम से राब्ते बढ़ा दिए। कहते हैं जो बानी PTI की अहलिया के साथ हुआ हमें उसका अफसोस है और हम खातून का एहतराम करते हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर, नून लीग ने भी कमर कस ली। नून लीग के उम्मीदवार PS 91 नासिरुद्दीन महमूद ने कॉर्नर मीटिंग सजा ली। मीटिंग में मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग डॉक्टर दर्शन लाल ने शिरकत की। मरकजी नायब सदर दर्शन लाल कहते हैं कि मैंने गुज़िश्ता 5 साल में कराची के लोगों के लिए आवाज़ उठाई और अब जीत कर आवाम की आवाज़ बनूंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कराची में अमन लाया, उसके बाद अब देखें कराची की रौनकें बहाल हो गई हैं। मैं समझता हूँ आप अगर देखेंगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आराम से 2/3 मेजॉरिटी ले जाएगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से नवाज शरीफ के आने के बाद जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है और जिस तरीके से लोग रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला वो ले जाएगी। नासिरुद्दीन महमूद का कहना था कि बानिए PTI को उनके करतूतों की सजा मिली है। अगर इक़दामात फ़र्ज़ कर लें कि उन पर वो जिस मुकदमे में भी उनको सज़ा हुई है, अगर वो ट्रायल सही हुआ है, उसमें उनको इंसाफ का मौका फ़राहम किया गया है, उनको मौका फ़राहम किया गया है कि वो अपनी सफाई में, अपनी बेगुनाही में जो भी चीज़ें पेश करना चाहती हैं, अगर वो नहीं कर सके हैं और उनको सजाएं हुई हैं, तो मैं इसको कैसे कह सकता हूं कि ये फैसला दुरुस्त नहीं है। नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों की मुहिम भी उरूज पर पहुंच गई है। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई। MQM पाकिस्तान के कारकुनान और हमदर्दों की जानिब इलेक्शन मुहिम जारी है। कारकुनान ने औरंगी को MQM पाकिस्तान का कला करार देते हुए क्लीन स्वीप का दावा किया। कामरान मिनहास की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट औरंगी में इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आ गई। मेयो बरादरी ने भी मुत्तहदा पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुत्तहदा रहनुमाओं का कहना था कि NA 233 में मेयो बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा कि MQM पाकिस्तान ही मसाइल हल कर सकती है। मेयो बरादरी जो है हमेशा MQM का साथ देती है और इंशाल्लाह देती रहेगी। वो इसलिए है कि हमारी जहाँ जहाँ हमारी बिरादरी बैठी हुई है वहाँ पे टोटल वो MQM ही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट औरंगी MQM पाकिस्तान का किला है, पहले भी काम किए, अब मजीद खिदमत करेंगे। मुत्तहदा की हिमायत कर रहे हैं, मेयो बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मुत्तहदा की हिमायत कर रहे हैं और हिमायत करते रहेंगे और पहले भी करते रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस दफ़ा पतंग को ही वोट देंगे। वसाइल ना होते हुए भी MQM ने हमारे बहुत सारे काम ऐसे थे जो नहीं हो पा रहे थे, वो MQM के पास वसाइल ना होते हुए भी उन्होंने हमारे को करा के दिया। हमारे एमएनए साबिक MP है। ये मैं उन सबको चैलेंज कर रहा हूँ। NA 233, NA PS 93 इंशाल्लाह 8 फरवरी को ये साबित करके आपको दिखाएंगे MQM पाकिस्तान ने यहाँ से विन किया है और बड़े मार्जिन से विन किया है। MQM पाकिस्तान के कारकुनों और हमदर्दों की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम जारी है। कारकुनान और हमदर्दों का कहना है कि जीत का निशान सिर्फ पतंग है। रिसाला ट्रैफिक सेक्शन ने 2 शहरियों की मसरूका मोटरसाइकिलें वापस करके उनके चेहरों पर खुशी बिखेर दी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानते हैं मेराज अख्तर की रिपोर्ट में। कराची में मोटरसाइकिल चोरी होकर मिल जाना किसी अचंभे से कम नहीं है। ऐसा मुमकिन बनाया रिसाला ट्रैफिक पुलिस ने, जिसने 2 मसरूका मोटरसाइकिलें शहरियों को वापस कर दी। रिसाला ट्रैफिक सेक्शन में चालान और लिफ्ट की गई मोटरसाइकिलें जांच पर चोरी की निकली थीं। दोनों के कोई वारस नहीं आए पीछे, तो मैंने कल फिर CPLC से इनको चेक करवाया तो दोनों चोरी में आ रही थी। तो उसके बाद मैंने CPLC से इनके मोबाइल नंबर लिए, क्योंकि जब बंदा FR कटवाता है तो अपना मोबाइल नंबर देता है वो। उस मोबाइल नंबर से हमने दोनों बंदों को कॉल की तो दोनों ने फ़ोन उठाया। तो मैंने कहा जी बाइकें आपकी ऐसे ऐसे हमारे पास खड़ी हैं, आप आ जाएं, आपकी हैंड ओवर करते हैं। किस्मत के धनी शहरियों को अपनी मोटरसाइकिलें वापस मिली तो उनके चेहरों पर तशक्कुर आमेज मुस्कुराहटें बिखर गईं। ज़्यादातर हम बाइकें गुम होती हैं तो वो मिलती नहीं, उम्मीद हम खो चुके थे ना, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम इनके कि हमारी बाइक सही सलामत उन्होंने जो है वापस दी हमें। बहुत हम खुश हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको खुश रखे और आगे भी तरक्की दे इंशाल्लाह। अच्छा महसूस कर रहे हैं कि बाइक मिल गई हमारी,
और सर कासिम का बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें हमारी बाइक रिटर्न कराई। रिसाला ट्रैफिक पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई पर शहरियों को उनकी चोरी शुदा मोटरसाइकिलें वापस मिल गईं, जो ट्रैफिक पुलिस के इकदाम पर खुशी से निहाल दिखाई दिए। महराज अख्तर, सिटी 21। निगरान वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि सूबे में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम करने की खात्मे के लिए मरबूत हिकमत अमली और निज़ाम कायम करना चाहिए। मकामी होटल में समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि सूबा सिंध में गुरबत को कम करने, मसावात को फ़रोग देने के लिए मरबूत और जामे समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम कायम करना चाहते हैं। बच्ची की तलाश के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही। वालिद की सिंध हाई कोर्ट में आहो बका कहा 4 साला बेटी 14 अगस्त को मज़ार कायद से लापता हुई। तफ्तीशी अफसर से JIT रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमाली। सिंध हाई कोर्ट में 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें सुनी गईं। लापता 4 साला बच्ची के वालिद भी अदालत पहुंचे। कमराए अदालत आहो बका से गूंज उठा। लापता बच्ची के वालिद ने बताया कि उनकी 4 साला बेटी 14 अगस्त को मज़ार कायद से लापता हुई। अब तक कुछ मालूम नहीं कि बच्ची कहाँ है। पुलिस मदद कर रही है, ना ही कोई और। सर, मेरा ताल्लुक कराची से, मैं रामसामी की रिहाइश हूँ और मेरी बच्ची मज़ार कायद इमेजिना रोड 14 अगस्त वाले दिन गवर्नर का प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम के अंदर से ये बच्ची मजमे में उठाई गई है। अभी तक ताल उसका कोई पता नहीं चल पाया। अदालत के इधर उधर आगे पीछे थानों में सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। JIT का पहला इजलास हो चुका है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफ़सार किया कि JIT की रिपोर्ट कहाँ है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रिपोर्ट कल तक मिलेगी। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। FBI की हिकमत अमली काम करके मुल्क की माशत को बड़ा रिलीफ मिल गया। रवा माली साल 7 माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा हो गया। FBI ने रवा माली साल 7 माह में 30% रिकॉर्ड इजाफे से 5,150 अरब रुपए टैक्स जमा कर लिया। हुकूमती और FBI के इक़दाम की वजह से टैक्स वसूली में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। FBI के जारी डाटा के मुताबिक जनवरी 23 के मुकाबले जनवरी 24 में टैक्स वसूली 25% इजाफे से 681 अरब रुपए रही, जबकि डाटा के मुताबिक रवा माली साल 7 माह के 5,115 अरब रुपए के हदफ से ज्यादा टैक्स जमा कर लिए गए। रवा माली साल 7 माह में FBI की टैक्स वसूली 30% रिकॉर्ड इजाफे से 5,150 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई, जो गुज़श्ता माली साल से 1,177 अरब रुपए ज़ायद है, जो कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 5 फरवरी कश्मीरियों से इजहार यकजहती। हुकूमत पाकिस्तान का आम तातील का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और तमाम बैंक्स और मालियाती इदारे बंद रहेंगे। तफसीलात के मुताबिक स्टेट बैंक के जारी एलामिये के मुताबिक पीर 5 फरवरी 2024 को मरकजी बैंक और तमाम बैंक्स आम तातील पर बंद रहेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एलामिये में भी ये कहा गया है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा। पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड इजाफा। रवा माली साल पहले छमाही में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 166% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। पेट्रोल और डीजल पर लेवी की मद में 473 अरब रुपए वसूल की गई, जो गुज़श्ता माली साल इसी मुद्दत में 178 अरब रुपए वसूल हुए थे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड इजाफा। वजारत खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में 166% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 473 अरब रुपए वसूल किए गए। वजारत खजाना के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पहले 6 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 178 अरब रुपए वसूली की गई थी। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में नुमाया इजाफे की वजह से रिकॉर्ड इजाफा हुआ। माहिरीन का कहना है हुकूमत फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक नवा माली साल बजट में पेट्रोलियम लेवी से 870 अरब रुपए मुख्तस है। साल 2022-23 में पेट्रोलियम लेवी से 542 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। अशरफ खान, सिटी 21।
सरमायाकार बेखौफ सरमायाकारी करें। वफाकी वज़ीर तिजारत और दाखिला गौहर एजाज का सरमायाकारों को पैगाम। OICCI का दौरा पर गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ पाकिस्तान के कारोबारी मंजरनामे और सरमायाकारों को दरपेश अहम मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर तिजारत ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की मईशत बनने के लिए तैयार है। That money is flowing out. I said, it's not possible. Our people doesn't have $600-700 million of liquidity. You know, they can draw down in a month and go and buy dollars from rupees. It's not possible. The real estate in Karachi is probably at its lowest in last 10 years. Nothing was selling. Where are they generating this cash flow? And then when I saw the sheet of Afghan Transit, I said, oh my God, this whole thing is circling. $600 million being bought, it doesn't matter at what price, because 30% is being kept by the exchange company, 30% by the retailer, 30% who has the license, and it's circulating every month 600. It doesn't matter what rate. 50% is the tariff minimum, inclusive of sales tax and taxes, income taxes, even at 20% duty, minimum tax 50%. So at 280, they had 140 rupees advantage under Afghan Transit. So it was a gola going on. That's how we say it. It was just rotating, 140. So when it was 340, that meant they had an advantage of 170 rupees on that day. The currency could have gone to 500.